Next question. The de Broglie wavelength of photon is twice the de Broglie wavelength of an electron. The speed of the electron is c by 100. Then EE by EP is 10 power minus 4. EE by EP is 10 power minus 2. PE by MEC is 10 power minus 1 and PE by MEC is 10 power minus 4. मतलब बेसिकली आपको बताया ये है दैट de Broglie wavelength of photon का जो वेवलेंथ है is 2 times of electron and the speed of electron VE is equal to C by 100. Then what is the ratio of? So first of all you need to look कि आपको यहाँ पे ratio of energy A और B ऑप्शन में है और C और D में मोमेंटम अपॉन MEC का रेशो है. तो हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस? de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन. फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकालते हो? हाउ डू फाइंड आउट फोटोन का वेवलेंथ? hc by energy of photon. Energy of photon is hc by lambda photon. Correct? So what is lambda photon? Is yes hc by ep. ठीक, हमको ep चाहिए था, नो प्रॉब्लम विद दैट. दूसरा, what is wavelength of electron? h upon momentum of electron. What is momentum of electron? me and ve. But what is ve? ve is c by 100. So you have this as h upon me, this is c by 100, so take 100 up, है ना? Good. Then what you are supposed to do is, इसके बाद क्या करो? Ratio of energy of electron to that of photon. Photon का तो आ गया. So what about energy of electron? कैसे फाइंड करोगे? मैंने बताया था energy. How do you find out energy? How do you find out energy? भूल गए? Half mv square. Particle मतलब half mv square. That's it. So energy of electron is half MEVE square. This is what you need to know. Then आगे what is to be done? What you need to do here is, क्या करेंगे? Multiply and divide by mass of electron. तो वो in terms of momentum आ जाएगा. That will be in terms of momentum. करके देखो. Let's see what happens. EE equal to half me square VE square upon me. तो ये मोमेंटम स्क्वायर आ गया. EE equal to momentum square upon 2me. तो मोमेंटम स्क्वायर is 2meEE. तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, अंडर रूट ऑफ 2meE. सही है? गुड. तो दिस इज व्हाट यू कैन हैव. बट हम अगर यहां तक एनर्जी तक ही रुके, क्योंकि हमको रेशियो किसका लेना है? एनर्जीज का. सही. गुड. देन व्हाट इज टू बी डन? रेशियो ले लो. देखो क्या आता है. इफ यू टेक रेशियो energy of electron upon energy of photon, what is energy of electron? E square by 2me. या फिर एक स्टेप और पीछे जाओगे तो what you can write down is this one, half MEVE square upon EP. What is EP? hc by lambda photon pH. ठीक है. Then आगे half me. What is VE? C by 100. C by 100 का स्क्वायर मतलब राइट अपॉन HC by lambda P. गुड. C तो कैंसिल कर दिया. देन व्हाट? तो ऐसा डायरेक्शनलेस क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ऑफ कोर्स द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग इज करेक्ट, बट you have to first look at the options properly. ऑप्शंस में जब रेशियो ले रहे हो तो सिर्फ एक नंबर है, रेशियो इज जस्ट नंबर. यहां पे आपने लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यहां पे आपने लिखा
एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, कैंसिल नहीं होने वाला है। तो कैंसलेशन मतलब प्योर नंबर कब मिलेगा? जब ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन में सेम टाइप के पैरामीटर आएंगे तो ही मिलेगा। तो कैसे, हाउ टू डू दिस, हाउ विल यू सॉल्व दिस, बिकॉज दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। हाउ? आई सी समथिंग हियर, यहां पे कुछ दिख रहा है, यूज दैट एंड सॉल्व। देखो, see why I gave you time to solve this was most of the books are giving you wrong या फिर lengthy solution, and also option is wrong here, right? I can tell you how, बहुत simple है, forget about this and forget about even this. Okay, look, is this clear? यहाँ तक lambda e is h upon pe, सही है, good, h upon meve, is this clear? Then what is ve? ve क्या था? c by 100, c by 100, very good. अब look, if I take this lambda e to that side और 100 यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो h upon lambda e और mec as it is, right? But what is h upon lambda e? What is h upon lambda e? अरे what is h upon lambda e? Pe. So this is pe by mec, correct? सही है। h upon lambda e क्या है यहाँ से? p, तो pe upon mec ये कितना आया? 1/100 मतलब 10 पावर माइनस 2, तो pe upon mec इक्वल टू 10 पावर माइनस 2। खत्म। This is what you're supposed to do. Next question. The de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 eV is, simple है, de Broglie wavelength of electron in terms of energy अगर याद होगा आपको h upon under root of 2m times of energy, if you remember, और h की वैल्यू आपके पास है 6.63 into 10 power minus 34 upon under root of 2 into m. What is m? me कितना है आपके पास? 9 into 10 power minus 34, बहुत कम दे दिया, और 31 होना चाहिए था. It should be 10 power minus 31 because you know that. You know what is mass of electron. कितना होता है? 9 into 10 power minus 31, तो that is a misprint. और एनर्जी कितना दिया है आपको? 120 eV, और आपको बताया है कि 1 eV का कन्वर्जन कितना 1.6 into 10 power minus 19. तो अब again to simplify calculations, 6.63 into 10 power minus 34 upon you see ये 2, इसको फिलहाल साइड में रखो, लेकिन 9 का रूट 3, 10 पावर माइनस 19 और माइनस 31 मतलब माइनस 50, मतलब उसका रूट 10 पावर माइनस 25, करेक्ट? ये दिस इज 120, इसका जीरो इसको दे दिया 16 का रूट 4, तो क्या बचा अभी अंदर? 12 और 2 24, और 24 इज 6 into 4, 6 into 4 का रूट 2 और आखिरी में बचा रूट 6, करेक्ट? अब what you can do here is, this is 3 ones are 2.21, सही है? This is 1, this is 1.1, समझ लो 1.1 है ना? Then what is left? This is ये 10 पर माइनस 25 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 1.1 है इसको 11 into 10 पावर माइनस 35 और 10 पावर माइनस 25 ऊपर जाके प्लस 25, क्या बचा नीचे? 4 रूट 6, 4 रूट 6। अब और एक काम कर सकते हो,
1 and 2.5 था approximately. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2.5 जा 10. उसको मैंने लग दिया रफली 11 को कर दिया 10, क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट आंसर से ही मतलब है. आंसर इज डन. कैसे? सी, दिस इज 10 पावर माइनस 10, मतलब दिस इज एंगस्ट्रॉम. आ गया एंगस्ट्रॉम था आंसर में. यस, 2.5 रूट 6 इज एनीवेज 2 पॉइंट समथिंग. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हमारे पास बीच में है 6, तो 2 पॉइंट समथिंग. 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग. हाँ, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.13 into 10 power minus 10 मतलब 1.13 angstrom. Done. That's it. Next question. A proton, a neutron, an electron, an alpha particle have same energy. Proton, neutron, electron, alpha particle have same energy. Then their de Broglie wavelength compare as proton, neutron, electron and alpha particle. इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन छोड़ दोगे तो बाकी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट? न्यूट्रॉन को छोड़ के. तो हाउ आर देयर वेवलेंथ्स, हाउ कैन यू कंपेयर? तो आपको याद होगा दे हैव सेम एनर्जी, रिमेंबर. तो अभी आपको याद होगा हमने अभी लिखा इट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m into e. गुड. तो यू कैन सी डायरेक्टली h कांस्टेंट, e कांस्टेंट एंड 2 इज आल्सो कांस्टेंट. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. सही है? देन you just have to compare. Now of course you know mass of proton and mass of neutron are same, correct? So mass of proton and mass of neutron are same, मतलब lambda of proton is equal to lambda of neutron. तो ये तो होना ही चाहिए. ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है, बी में भी है और डी में भी है, एवरीवेयर. देन व्हाट यू नो इज, और क्या है? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, राइट? जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन मतलब ग्रेटर देन न्यूट्रॉन. कहां पे है ये? कहां पे है? जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा. मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा है, कम है, मतलब वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा. लेकिन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. कहां दिखता है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. गुड. सही. बाकी कहीं पे है क्या ऐसा? नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी. आखिरी भी चेक कर लो, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल. सबसे ज्यादा मास किसका होता है? अल्फा. तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? हाँ, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी. यू हैव टू स्टार्ट बाय लुकिंग हियर. सबसे ज्यादा मास किसका? अल्फा. तो सबसे कम वेवलेंथ किसका? अल्फा. तो एक ही ऑप्शन था. डन. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. देन light of wavelength 0.6 mm from sodium lamp falls on a photocell and causes the emission of photoelectrons for which stopping potential is 0.5 volt. With light of wavelength 0.4 mm from sodium lamp, the stopping potential is 1.5 volt. With this data, the value of क्या प्रिंट नहीं हुआ, तो value of what they can ask you is, या तो वर्क फंक्शन पूछेंगे, they can ask you work function, right? That's all they can ask you. So question number 19 में they are asking you what is basically the value of h by e. So they are asking you what is the value of h by e. Value of h by e ये फाइंड करना है. और how do you know? You should know what is h. E equal to h, no? E equal to h, no? So what is h? E by no.
E by nu. You know E is joule, and this is 1 upon second. 1 upon second, joule second. E, H by E, H by E, joule second. E is charge, coulomb. Have you seen somewhere energy upon charge? Electrostatics. Work done energy. Energy upon charge is what? Potential. तो ये क्या आएगा? वोल्ट. वोल्ट सेकेंड. इसी क्या पूछा है, ये नहीं भी पता होगा तो ऐसा यूनिट्स पे ध्यान दो ना. हाँ, तो क्या पूछा है आपको? H by E. क्यों? क्योंकि H by E ये आता है वोल्ट सेकेंड्स में. इज दिस क्लियर? नहीं तो मैं वापिस बता देता हूँ. डोंट वरी. व्हाट यू हैव इज, you know energy E is H nu. You know H is energy by nu. This is joule upon 1 upon second. मतलब ये आ गया joule second. सेकेंड तो है ही. अब हमें यहां दिख रहा है V. तो यू हैव टू थिंक वोल्ट कैसे लाएंगे. वोल्ट तब आएगा जब नीचे कूलम आएगा. क्यों? क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज इज वोल्ट. राइट. नीचे क्या आएगा? चार्ज. तो नीचे क्या आएगा? चार्ज. तो क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ H बाई E. तब जाके वोल्ट सेकेंड आएगा. गुड. तो अब आपको गिवन डेटा में दो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए हैं, ये ना, दो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 एंड 1.5, और दो वेवलेंथ दिए हैं. तो यू शुड रिमेंबर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. EV0 इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, HC 1 by lambda minus 1 by lambda 0. ये तो पता होना ही चाहिए. अब हमने आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए इस टाइप के. गुड. तो अब पहला केस, पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 0.5. तो 0.5 स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.5 वोल्ट. वोल्ट को लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे. V0 क्या है? 0.5. E तो है E इक्वल टू HC 1 बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ कितना दिया आपको? 0.6 mm. 0.6 mm. इसको फिलहाल हम लोग mm में रख देते हैं. लेट्स सी लेटर व्हाट इज टू बी डन. -1 बाय, राइट. अब देन केस नंबर 2. केस नंबर 2 में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 और E का E HC, दिस इज इन mm, 0.4. 0.4 minus 1 by lambda 0. You are supposed to find out H by E. तो एक काम करो, यहाँ पे ये E को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से भी इसको यहाँ पे रख दो. गुड. इज दिस करेक्ट? अब डिवाइड तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो H by E गया. डिवाइड नहीं करना. डिवाइड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट. जब सब्ट्रैक्ट करोगे, यू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. माइनस माइनस एंड ये टर्म भी माइनस. मतलब एक काम करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया अगर, तो 1.5 में से 0.5 गया. 0 पॉइंट कैसे 1 आएगा ना. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लिया, इसमें से इसको माइनस कर लिया. लेकिन यहाँ पहला टर्म क्या था? HC by E into 0.4. HC by E 0.4. 0.4 माइनस 0.6. खत्म. क्योंकि HCE लैम्डा 0 HC लैम्डा 0 कैंसल. गुड. ब्रैकेट ओपन करके करो. यस, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू रिड्यूस स्टेप्स नाउ. अब तो ब्रैकेट ओपन करते रहे तो टाइम जाएगा हमारा. तो यू कैन नॉट डू दैट. तो HC by E, how much is this? 0.6 minus 0.4 upon 0.4 and 0.6 का प्रोडक्ट. वेरी गुड. अब आपको क्या चाहिए था? H by E. HC by E, this is 0.2 upon 0.4 और 0.6. 1 and 2 correct. This is 1.2. तो 1 इक्वल टू HC by E और आ गया 1.2. एक छोटी सी गलती याद रखो,
mm था, mm ऊपर तो mm माइनस mm, ओके, नीचे mm इंटू mm का स्क्वायर, ऊपर mm नीचे mm का स्क्वायर, तो नीचे मतलब ये 1.2 है mm में, तो दिस इज इन mm, तो दिस इज इन mm मतलब 10 पावर माइनस 3। ये बाद में मैं देखूंगा इसको आखिरी में। तो देन h बाई e चाहिए था, h बाई e is 1.2 by c, remember this 1.2। अब ये था mm में, दिस वाज इन mm by c, तो mm को 10 पावर 3 इंटू 10 पावर ऊपर, हाउ मच इज दिस? एक काम करो, यू शुड डू वन थिंग, इसको 0.3 लिख लेना, इसको 9 कर देना, 1 जा एंड 4 जा, 4 आ गया कम से कम, यस 4, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 12, है क्या? नहीं, हाँ तो फिर नहीं है तो समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग? नहीं, ऑल राइट, तो वेट अ मिनट, सी अगेन देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक। ऐसा है, ये आप बोल रहे हो mm का स्क्वायर था, एग्री, 0.6 0.4 माइनस कर लिया, ये किसमें था? mm में था, 0.4 इंटू 0.6 mm और mm का स्क्वायर, ऊपर एक mm नीचे mm का स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा? mm बचा, तो नीचे क्या बचा? mm बचा, करेक्ट, राइट। तो 1.2 के साथ क्या आएगा? mm, 1.2 के साथ क्या आएगा? mm, तो सही है, दिस इज करेक्ट। तो व्हाट इज रॉन्ग? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग। mm स्क्वायर तो बोल रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग? What is wrong? What is wrong? What calculations I have is 10 पर minus 7, और क्या वैल्यू थी आपके पास? 1.2, तो ये mm नहीं होना चाहिए, क्यों? Have you ever seen wavelength in mm? nm नहीं, this is micrometer. What is येलो लाइट का वेवलेंथ? सोडियम लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6000 into 10 power minus 10, मतलब 6 into 10 power minus 7, मतलब 0.6 into 10 power minus 6, मतलब 0.6 माइक्रोमीटर। गुड, इसका मतलब हमने कुछ नहीं गलत किया, वी आर नॉट रॉन्ग हियर। व्हाट इज रॉन्ग इज दिस शुड बी माइक्रोमीटर एंड दिस शुड आल्सो बी माइक्रोमीटर, राइट? तो अब ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू सी ये आ गया आपके पास माइक्रो। व्हाट इज माइक्रो? -6, तो ये कितना होगा? 15 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो यू सी यू शुड नो, एग्जैक्टली नो, सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प और mm में नहीं आता है उसका वेवलेंथ। Next question. A light of wavelength 600 nanometer. Now it is good. Correct. Right. Is incident on a metal surface. When a wavelength of light 400 nanometer is incident, the maximum kinetic energy of photoelectrons is doubled. Fine. The work function of the metal is a very good question and a simple one also. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी is equal to hc by lambda minus work function. केस 1 में काइनेटिक एनर्जी को k1 बोल देंगे, hc by lambda 1, क्योंकि पहला वेवलेंथ कितना था? 600, माइनस वर्क फंक्शन, और k2 is hc by lambda 2 minus वर्क फंक्शन, बट k2 is 2 times of k1, ये बोला ना डबल हुआ, यस, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डबल, तो hc by lambda 2 minus वर्क फंक्शन। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस, राइट?
करेक्ट क्या फाइंड करना है आपको? वर्क फंक्शन। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वर्क फंक्शन ही गया, तो सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? डिवाइड। तो ये दिस इज आल्सो वन मोर थिंग दैट यू नीड टू लर्न, व्हेन टू डिवाइड एंड व्हेन टू सब्ट्रैक्ट। लास्ट टाइम वी सब्ट्रैक्टेड इट। व्हाई सब्ट्रैक्टेड इट? क्योंकि हमको उस केस में ये जो वर्क फंक्शन से रिलेटेड, ये जो वर्क फंक्शन से रिलेटेड आपके पास वेवलेंथ था, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था, ये नहीं चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट। राइट? इस केस में हमको ये डिलीट नहीं करना है, ये रखना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिवाइड। इफ यू डिवाइड दिस टू, तो 2k1 अपॉन k1 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc बाय लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन, कैंसल एंड कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई 2hc by lambda 1 minus 2 times of work function equal to hc by lambda 2 minus work function। अब सिर्फ क्या करना, ये -250 को शिफ्ट कर लेना और hc by lambda 2 को वहां शिफ्ट कर लेना। 2hc by lambda 1 minus hc by lambda 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन, तो यहां से hc आ गया कॉमन, 2 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 equal to work function। हो गया, done। Put values, then if you put values, work function equal to hc, h is 6.63 into 10 power minus 34, c is 3 into 10 power 8। 2 by lambda 1, what is lambda 1? 600 नैनोमीटर, तो 600 मतलब 10 पावर माइनस 7 हो जाएगा। ये नैनोमीटर को 10 पर माइनस लिख लिया और 600 का 600 का यहाँ पे 2 जीरो, और वो 10 पर माइनस 9 वाला 10 पर माइनस 7, और ये कितना था? 400 माइनस 1 बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 7, 1 एंड 3 10 पर माइनस 7 टेकन आउट, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 10 पावर माइनस 7, ये आ जाएगा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4। So this is equal to, अब wait a minute, 6.63 into 3 into 10 power plus 15 and minus 34 मतलब minus 19, minus 34, ये minus से ऊपर जाएगा तो plus 8 plus 7 15, 15 minus 34 is minus 19, this is 4 minus 3, 1 by 12, 1 and 4 6.63 by 4 into 10 power minus 19 जूल। आपको चाहिए ईवी में, तो डिवाइड बाई ई, तो डिवाइड बाई ई, तो 6.63 into 10 power minus 19 अपॉन 4 into 1.6 into 10 power minus 19, ये हो गया ईवी, ये और ये हो गया कैंसल, 1 एंड रफली 4 और 4 कैंसल, तो रफली 1 EV, ये आ गया 1 EV। So that's it for today.